Hi everyone, so myself Ragni. I hope all of you good and healthy and nice to see you again. So basically today we are going to solve CSRNet and it is the previous year questions, and here today we are going to solve 16 Feb 2022 question, and it is a part C question. I already solved the part B question. If you are not watched, you can go in YouTube channel Magic of Mathematics and check it. So basically here we will try to solve a algebra question. Here maybe abstract algebra question also, including ring theory, group theory and field theory, and linear algebra question. So let us try to solve and enjoy these questions. So let us try to solve. Okay, so here our first question is what? If you want, you can just pause video and try to think about these questions. Question number 61, and just try to think about. And if you are getting, let me know which type you are thinking and what you get when you are solving. So let us try to think about. Okay, so what is given? First of all, we will see. It is a known that x is equal to x naught in M2 of z is a solution of ax minus x a is equal to a for some a in here 3 2 by 2 matrix are given. So we will choose one of them and then try to solve it. Okay, as here given what ax minus x a is equal to a, so we will use this thing and then try to solve what we will get. And here you can see. Here our x is nothing but x naught, and which is nothing but a set of all, which belong in set of all 2 by 2 matrices whose entries from rational. Okay, so let us try to think about. Okay, so first of all, what is given here, and what is given here we will choose here. Let क्या कर लो, x is equal to x naught, which is let us suppose it is a b c d in m to z. Okay, m to z, and then we will use this thing ax minus x a is equal to b, and then I will take a equal to this thing. So what is given here, we know. If we have what we have ax minus x a is equal to a, which implies that what? Which implies what? Minus 1 1 1 minus 1 and a b c d minus a b c d and minus 1 1 1 minus 1, and which is nothing but what? Which is equal to minus 1 1 1 minus 1. Okay, so let us just try to simplify it, and then what we will get, we will see. Okay, so it implies what? It implies here we will get minus a and c, and here you will get c, and when you will do multiplication there, then what you will get? Minus b. You can do with me that, and that you can, if somewhere I am getting wrong, then you can be correct it. Okay, so plus d minus d and minus this thing minus a minus c and plus b plus d and what? A c minus b minus d, which is equal to what? Minus 1 1 1 minus 1. Okay, now see, it implies that what? It implies when you subtract this matrix from this matrix, then it is equal to this. Okay, so let us try to just simplify it, and you will get here what? Here you will get minus a plus c plus a minus b and a minus c plus c minus d and minus b plus d
minus a plus b, and here b minus d, and it will be c plus d. Okay, which is equal to what? minus 1 1 1 minus 1. Okay, acha. So it implies that what? It implies just simplify it, then it will be cancel out and you will get this, and this cancel out, you will get this, and here it will be cancel out and here you will get this, and here you will get what? Here you will get b minus c. Okay, and minus 1 1 1 minus 1. Just compare and you will get, as we know, if two matrices are equal, then their corresponding, if and only if their corresponding entries are equal, right? So we will get what? minus c d equal to minus 1, and here you will get what? Here you will get d minus a equal to 1. Okay, अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, क्या मिल जाएगा? ओके, क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा c इक्वल टू what? minus 1 प्लस b, and here you will get a plus 1. अच्छा, as you know, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या पॉसिबल है? ad minus bc, right? What possible? ad minus bc. So we will get what? We will get just multiply on the both sides. Suppose your a is a non-zero. Okay, then you can also, if it is 0, it does not matter. So here just multiply with what? b. So bc equal to what? You will get here minus b plus b square, and here you will get ad. When you multiply with d, then what you will get here? Here you will get a square plus 1. Okay, now subtract it from first. Once again, do it first minus second. Then what we will get? We will get what? We will get ad minus bc, which is equal to what? A square plus 1, okay, plus b, and minus b square. And when you will, it is nothing but determinant of what? x naught. Okay, and when you will simplify it, what you will get? You will get b, a minus b, and a plus b, and here you will get what? Okay, sorry, here it will be a also, right? Okay, so here you will get what? A plus b. Acha, it when you will take common, then it will be like that. And another thing, what a minus b plus 1, right? Okay, where a, b, c are integers. Now see, let us see our options. What is given? Determinant of x not equal to 0 and determinant of x not equal to 2. Determinant of 0 is equal to c. So हमें देखना कि कौन सा नहीं पॉसिबल. अच्छा, कौन सा नहीं पॉसिबल देखना. Let us check one by one. So 0 पॉसिबल है कि नहीं? Let us see. Okay, ऑप्शन ए के लिए क्या करो आप? क्या किया जाए? अच्छा, a इक्वल टू 1 ले लो, b equal to minus 1 ले लो. So what you will get? Determinant of x not equal to what? 0 into, yes, what? Right, 0 into 3. Okay, and so it is possible, right? It is equal to 0. So 0 is a possible. So it is not our answer. So let us see option B. So ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी देख लेते हैं जल्दी से. तो ऑप्शन बी में क्या बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट 2 है. अच्छा, देखते हैं अच्छा है कि नहीं. x नॉट इक्वल टू 2 पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं. ठीक है, अच्छा, क्या ले लिया जाए यहाँ पे? क्या ले लिया जाए कि हमें डिटर्मिनेंट 2 मिल जाए. ओके, इफ यू टेक ओके, इफ क्या कर लिया जाए? इफ a इक्वल टू 1 ले लो, b इक्वल टू 1 ले लो, देन व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट हियर डिटरमिनेंट ऑफ x नॉट इक्वल टू व्हाट? सी 1 plus 1 and 1 minus 1 plus 1, which is equal to 2, right? So it is also possible, as you can see. Okay, let us see option C. Okay, अच्छा, ऑप्शन सी में वो क्या बोल रहे हैं कि डिटरमिनेंट x नॉट इक्वल टू 6 पॉसिबल है कि नहीं. अच्छा, तो देख लेते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं 6.
है ना। सो क्या लिया जाए, बताइए जरा क्या लिया जाए यहाँ पे क्विकली, क्या लिया जाए। ए इक्वल टू अगर 2 ले लें, बी इक्वल टू 1 ले लें, देन हम क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जरिए क्या मिलेगा यहाँ पे 2 + 1 एंड 2 - 1 + 1, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6. सो वी आर गेटिंग इट, राइट. ओके, सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल. अच्छा, बचा डी, obviously it is incorrect. Okay, so if you can as see, it is not possible. I mean it is possible, it is possible, it is possible, and it is part C question. So and we have to check which one is not possible. So obviously one at least one is not possible, right? So our this thing is our this option correct हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट पॉसिबिलिटी वाला देखना तो ये करेक्ट हो जाएगा. अच्छा, so you can see how we do this question. Just first we assume x naught in our M2Z, and then we have a, as it is given in our question, so we just follow our question and then we will just simplify it as our A belongs to in that particular set. So we will choose one of them as A, and then we will try to simplify it, and then we will try to solve it, and we will get two relations from that particular thing, and then we will just multiply the things, as here we will multiply by B and here we will multiply by A. Then we will just simplify it, and we will get a relation, and here we will get a determinant of a given x naught. Then we will just simplify it, and then we will get like that, and then we will choose a possibility of the given things, and then we will get it. Okay, so I hope you enjoyed this question. So let us try to do another question. So let's read what is question, second question. So let us read it. Okay, so what is given here, let A be m by m matrix, okay, with the entries and okay real entries है, ठीक है, इसका एक ही मैट्रिक्स की एंट्रीज कैसी है, रियल है, एंड लेट एक्स बी m × 1 वेक्टर ऑफ अननोन्स, ठीक है जी. नाउ कंसाइडर द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो. अच्छा, नीचे दिए गए 2 स्टेटमेंट दे दिया है उन्होंने. वो बोल रहे हैं क्या क्या, पहला स्टेटमेंट क्या, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर्स B1 इन Rm such that the linear system Ax = B1 has no solution. अच्छा जी. And another क्या है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर्स B1 B3 इन Rm विथ B नॉट. अच्छा, B जो है वो यहाँ पे B3 जो है वो B2 के जो B2 है वो B3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे. बेसिकली क्या है कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जा रहे हैं. अच्छा, देन फॉर एनी C इन R, वट एवर C यू आर चूजिंग इट डज नॉट मैटर, बट दे आर नॉट रिटन इन linear combination of each other. Okay, such that the linear system Ax = B and Ax = B3 have solutions. Okay, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है. अच्छा, देखना जरा क्या बोल रहा है, हैज नो सोल्यूशन. व्हाट अबाउट इफ वी टेक हियर आवर A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, है ना, बिकॉज वी आर टेकिंग इन जनरल मैट्रिक्स, they are not given whether it is a non-singular or singular matrix, right? So how can we say that there exists, suppose you take a matrix which is a non-singular matrix, then is it true there exists a non-zero vector B? Because it works for all B. It works for all B. For all B, our linear system Ax = B has Ax = B, B1 has a unique solution. In that particular case, we cannot say na, right? So how can we say in general? Okay, I hope you are getting it. And now another thing is there exists a non-zero vector B1 and B2 in R3. अच्छा, ये चीज गलत कैसे है या सही कैसे है? अच्छा, आप सभी को पता है कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो हर एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो, राइट? एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे डिफाइंड होती है? एक तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई होता है, एंड फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एंड वाई इन आवर गिवन वेक्टर स्पेस, राइट?
है कि नहीं. एंड अनदर थिंग व्हाट, टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स. अच्छा देखना, अगर भी कोई, अगर आपका आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स, राइट, है कि नहीं. बट ये बोल रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट है. माई मीन्स कि टी ऑफ बी जो है एक बार टी ऑफ एक्स बी पे जा रहा है, फिर एक फिर डिफरेंट टी ऑफ एक्स जो है डिफरेंट पे जा रहा है, ठीक है, वो सी इंटू बी थ्री पे जा रहा है. इज इट पॉसिबल? नो ना. ओके, so let's see what is given here. What second is true whenever a is true, is singular, sorry. Second is true whenever a is singular. अच्छा, no, it is not true. First is true whenever a is singular, right? It is true. अगर a आपका सिंगुलर है then there exists, then यहाँ पे एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर ही जाएगी. Okay, think about. Suppose if you take a matrix of क्या कर लो, nilpotent matrix, स्पेशल टाइप ऑफ nilpotent matrix ले लो, ऑफ इंडेक्स 4 ले लो, ठीक है, एंड हियर 3x3 के मैट्रिक्स ले लो एंड उसका इंडेक्स ले लो, ठीक है, उसका इंडेक्स 3 ले लो एंड देन ट्राई टू सी. ओके, and also you can see because what, if you take vector v, like let us say, okay, so let क्या करो यहाँ पे, let क्या ले लो मैट्रिक्स आपकी, क्या ले लिया जाए, बोलिए, क्या लें, ओके, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0, राइट. और यहाँ पे बी आप क्या ले लो, अपना बी क्या ले लो, ये तो हमारा ए हो गया, हाँ, बी क्या ले लो आप, 1 2 3 ले लो. अच्छा, यहाँ पे आ गया पाइवोट ना. अच्छा देखना, रैंक ऑफ ए जो है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली लेस देन है रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, राइट. तो ये चीज इम्प्लाइज कर देगा व्हाट, ये क्या इम्प्लाइज कर देगा, जो ए एक्स का जो बी है हैज नो सोल्यूशन. Okay, so that is why it is correct, हाँ. So I is true whenever a is singular. तो जब a singular होगा ये चीज true हो जाएगी. अच्छा, let us read another option C. Both first and second can be true simultaneously. अच्छा, क्या बोल रहा है, फर्स्ट और सेकेंड साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकते हैं. कब हो सकते हैं, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है बोल रहे हैं. Is it possible? Think about. Is it possible? Think about. Is it possible or not? क्या बोल रहे हैं, both first and second can be true simultaneously. अच्छा, can भी है, क्या है, can be true, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट कर जाएगी. अच्छा, क्या कहते हो अगर हम जीरो मैट्रिक्स ले लें, अगर जीरो मैट्रिक्स ले लें तो वो तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा, राइट. ओके, सो इट इज आल्सो पॉसिबल. हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि ये फॉर ऑल के लिए नहीं है, ठीक है, इन जनरल नहीं है. बट अब ऑप्शन ए में क्या था, जनरल था ये, ठीक है, क्या था, ए कैसा था, जनरल था, मतलब सबके लिए सही होना चाहिए. बट यहाँ क्या है, यहाँ पे देखना क्या, कैन भी, मतलब यहाँ पे एक क्या ऐसा कभी एक पॉसिबिलिटी मिल सकती है. सो यस, इट इज ट्रू, ठीक है. ओके, सो व्हाट, so option B and C are correct. Okay, and option D क्या कर लो, if m equal to true then at least one of first and second false. ऐसे 2/2 की ले लें तो एक और दो में से, इनमें से कोई एक false हो सकता है.
जरा देखना, 2/2 की मैट्रिक्स ले लें, इट डज नॉट मैटर वेदर एटलीस्ट बोल रहा है ये ऑब्वियसली। इफ यू टेक इन जनरल इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले लो आप, ठीक है, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज योर मैट्रिक्स इज 2i, है ना, देन इन दैट पर्टिकुलर केस बोथ आर इनकरेक्ट। सो ये क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन फॉल्स है, दोनों भी हो सकता है बट एटलीस्ट वन, तो ये भी आपको कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। सो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। So what is our next question? Okay, so see question number 66 and it is our question number 3rd hour. So let us try to think about this question. What is given here? Okay, let m in R such that m not equal to 0 but m square equal to 0. Which of the following statement are true? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें बताना है, ठीक है। इफ n इज इवन, ओके, देन डायमेंशन ऑफ कॉलम ऑफ m इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ नल ऑफ m, ओके, नल स्पेस की डायमेंशन कैसी है, ऐसी है, ठीक है। इफ n इज इवन देन दिस थिंग इज ट्रू, मीन्स डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ m इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m. If n is odd, then dimension of column space of m is less than equal to dimension of null space of m. And fourth thing is what? If n is odd, then dimension of column of m is greater than dimension of null space of m. Okay. So basically given क्या है यहाँ पे, है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक निलपोर्टेंट मैट्रिक्स दे दी है इंडेक्स 2 की, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स 2 की है तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी, जरा देखना क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। सो हियर व्हाट वी आर गेटिंग दैट, so what we getting, let us see, हाँ, so क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, m कैसी है, n बाय क्या है, n बाई n की मैट्रिक्स है, n स्क्वायर करने पे क्या दे रहा है, ये 0 दे रहा है, ठीक है जी। देन ये चीज़ इम्प्लाइज करेगी कि रैंक ऑफ m क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इट इज इन मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, ओके। सपोज इफ इट इज व्हाट, इवन, अगर ये इवन है तो क्या होगा, देख लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो अगर n इवन हुआ तो लेट क्या करो, लेट n, अच्छा, अगर n इवन है तो हमें पता है बाई रैंक नलिटी थ्योरम, बाई रैंक नलिटी थ्योरम, अच्छा, हमें रैंक नलिटी थ्योरम से क्या पता है कि जो डायमेंशन ऑफ v होता है, डायमेंशन ऑफ v जो होता है वो रैंक ऑफ m, ठीक है। सपोज इट इज योर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बिकॉज एवरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी विल यूज दिस बिकॉज इट इज अ फाइनाइट डायमेंशनल, राइट, प्लस नलिटी ऑफ t, सॉरी नलिटी ऑफ m। अच्छा, देखना यहाँ पे जरा देखो, ये क्या है, 2m है। अब हमें पता है कि m की डायमेंशन क्या है, 1 है ना, 1 है इसकी डायमेंशन, ओके। ओके, तो यहाँ पे नल स्पेस की डायमेंशन क्या आ जाएगी, 2m - 1। अच्छा, देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो व्हाट रैंक जो है ना वो हमेशा क्या होगी, एक चीज देखो, m कहाँ से आ रहा है, हमारा z से आ रहा है, राइट, रैंक हमेशा पॉजिटिव आ रहा था, z प्लस से आ रहा है, z प्लस 0 से आ रहा है, ठीक है। तो या तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, इन दैट पर्टिकुलर इट विल बी -1 विच इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो अगर m की वैल्यू हमने क्या ले लिया, क्या हम ले लिया, m की वैल्यू
अगर हमने 1 ले लिया तो नलिटी 1 आ जाएगी। अच्छा, अगर m की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो नलिटी 3 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या, ये क्या इम्प्लाइज करती है, जो नलिटी ऑफ m होगा इन दैट पर्टिकुलर, वो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ m। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, इफ इट इज इवन देन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, सी इट, इफ n इज इवन देन डायमेंशन ऑफ कॉलम ऑफ m। अच्छा, ये चीज़ क्या इम्प्लाइज करेगी, जो इट इज़ नथिंग बट यू कैन राइट लाइक दैट ना, क्या लिख सकते हो इस चीज़ को आप, सो व्हाट यू कैन राइट इट, हाउ कैन यू राइट इट लाइक दैट ना, ओके, सो व्हाट वी विल गेट हियर, column of m which is less than equal to dimension of null space of m, ठीक है, ये चीज़ इम्प्लाइज करेगा, ठीक है। सो इट इज़ करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज वर्ड करेक्ट, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है इफ n क्या हो जाए, ऑड हो जाए, इफ n इज ऑड। अच्छा, अगर ये ऑड है, ठीक है, हमें पता है कि रैंक ऑफ m कितना है, 1 है ना। सो इन पर्टिकुलर केस, बिकॉज इट इज ट्रू इन जनरल, राइट, सो इफ सपोज क्या सपोज कर लो, इफ if rank of m is equal to nullity of m, है ना। तो ये क्या करेगा, क्योंकि आपका n कैसा ऑड है, तो ये होगा 2 इंटू नल्टी ऑफ m, और या फिर 2 इंटू रैंक ऑफ m, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि हमें पता है कि जो डायमेंशन होता है वो इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना कि फ्रैक्शन होता है, ठीक है। सो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, so it is not, so equality not possible in that particular case, and as we know, what we know, okay, so here equality not possible as we previous see, so here what will do, so we will get dimension of column of m is what, strictly less than null space of m। अच्छा, अब आपके माइंड में आया होगा कि डायमेंशन ऑफ कॉलम ऑफ m ग्रेटर देन क्यों नहीं है। एज यू कैन सी, इसका रैंक क्या है, 1 है ना। जब इसका रैंक 1 है और ये n बाई n की मैट्रिक्स है, मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे n की क्या है, 1 है, ओके, और ऊपर से n कैसा ऑड है, ठीक है। सो 1 3, सपोज अगर इफ का यहाँ पे m की क्या आ जाएगी, 3/3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। इन दैट पर्टिकुलर केस इफ़ यू टेक रैंक 1, देन इसकी नल स्पेस की डायमेंशन क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सपोज इफ इट इज़ 5/5 मैट्रिक्स, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा। सो इन जनरल क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे डायमेंशन है, ठीक है। सो ये डायमेंशन ऑफ क्या है, डायमेंशन ऑफ कॉलम ऑफ m जो है वो स्ट्रिक्टली लेस दैन डायमेंशन ऑफ नल ऑफ m। सो इन जनरल ये चीज़ ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स अस रीड अनदर क्वेश्चन। सो यहाँ पे अनदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लो जल्दी से कौन सा बता रहा है। अच्छा, सी हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन, एंड सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। So here next question is what, so what they are defined, see 70, question number 70, right? So it is simple question। अच्छा, ये जो हमने previous question देखा था उसमें ज़रा देखना, what about if you take matrix, unimportant matrix of index n, ठीक है। What about if you take matrix of index n, so what you will get here,
Is it true in that case also? Our given things, is it true in that case also? Just think about what I said. आप देखना, यदि आप मैट्रिक्स ले लेते हो इन इंडेक्स का, ठीक है, सो तब वहाँ पे देखना कि ये जो बोल रहे थे कि अगर इवन है तो जो डायमेंशन ऑफ कॉलम ऑफ एम है वो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एम है. And another thing, if it is odd, then dimension of column of M is less than dimension of null space of M. So you will try to just think about if you take index n. Okay, is it true in that case also? Okay, and let me know in comment box what you will get. Okay, so let us see question number 17. So what is our question number 17? Which of the following are inner product on R2? So उन्होंने कुछ डिफाइन कर रखा है. अब हमें देखना है कि ये इनर प्रोडक्ट फॉर्म करता है कि नहीं. अच्छा, ज़रा आप बताओ कि इनर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है. इनर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर अगर इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर इट सेटिस्फाई लिनियरिटी प्रॉपर्टी, एंड देन सेकंड नॉन नेगेटिविटी, एंड देन थर्ड व्हाट, यस, सिमेट्री. So we will do here, we will first try to write its matrix representation, and then we will try to see whether our given matrix is symmetric or not, and then we will try to see whether it is positive definite or not. Okay, so we will try to see all these things, and then we will which one not satisfy this thing, then this matrix is not that particular inner product not form, that particular product not defined in inner product. Okay, so let us see. So our option first क्या दिया हुआ है. Okay, उन्होंने ऑप्शन फर्स्ट कैसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 कॉमा y1 y2 विच इज इक्वल टू x1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू x1 इंटू y2 प्लस 2 इंटू x2 इंटू y1 प्लस 2 x2 इंटू y2. ओके, सो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा. ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी. यहाँ पे इनर प्रोडक्ट उन्होंने कैसे डिफाइन कर रखा है, x1 x2 एंड y1 y2, ठीक है, एंड इट इज गिवन लाइक दैट x1 y1 प्लस 2 इंटू x1 y2 प्लस 2 इंटू x2 y1 प्लस x2 इंटू y2, राइट. नाउ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जल्दी से लिखो, ठीक है. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जल्दी देखना क्या आ जाएगा, क्योंकि ये R2 के अंदर 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, एंड ये हो जाएगा 1. And when you will put x1 y1 equal to y1 y2, then you will get it. Okay, so here you will get 2 and 1. So जल्दी से बताओ इसके आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, quickly what you will get आइगन वैल्यू. as you can observe here, row sum, each row sum is there, and also you can see each column sum also too. So one of eigen value will be what, 3, right. Now we will use the trace thing, and as we know the eigen value का सम क्या होता है, ट्रेस होता है, ठीक है. आइगन वैल्यू का सम क्या होता है, ट्रेस होता है, नथिंग बट ट्रेस. तो यहाँ पे एक आइगन वैल्यू तो आपको पता चल गया, ये तो अनदर आइगन वैल्यू को तुरंत हम फाइंड कर सकते हैं. तो ये इम्प्लाइज करेगा व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू -1. अच्छा, देखना जरा, क्योंकि एक आइगन वैल्यू कैसी आ गई, माइनस आ गई, एक आइगन वैल्यू प्लस आ गई. सो इट विल नॉट सेटिस्फाई, आई मीन इट नॉट फॉर्म ए व्हाट, इट नॉट फॉर्म ए positive definite. As we know, if it is a positive definite, then it's all eigenvalue positive. But see here, one eigenvalue is negative, so it not form a inner product space, as it is not a positive definite, which implies is M is not positive definite matrix, which implies जो हमें डिफाइन कर रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्म. ओके, इज नॉट इनर प्रोडक्ट. ओके, सो लेट अस सी अनदर ऑप्शन. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट ऑप्शन, so what is given, let us read and then try to solve.
सो उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या है y1 y2 विच इज इक्वल टू व्हाट, इसका इनर प्रोडक्ट है जो ऐसे डिफाइंड है x1 y1 प्लस x1 y2 एंड प्लस x2 y1 एंड प्लस 2 इंटू x2 y2. सो हम क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे. सो ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, एज वी सी. सो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, जरा देख लेना जल्दी से. या 1 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा. अच्छा, अब आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, जरा देखना. अच्छा, ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड ट्रेस माइनस ट्रेस इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट. अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी इसकी, 2 माइनस 1 विच इज़ 1. एंड यू कैन सी यहाँ पे से रूट्स क्या आ जाएंगे, 3 प्लस माइनस एंड 9 माइनस 4 अपॉन 2, राइट. अच्छा, ये 3 प्लस माइनस एंड ये हो जाएगा 5/2 एंड इसकी जो क्या आ जाएगा, ओके, इसकी वैल्यू जो आएगी क्या, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, जो विच इज़ लेस दैन 3, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0. आई मीन इसके दोनों आइगन वैल्यू कैसी आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगे. ठीक है, सो इट विल डिफाइंड इनर प्रोडक्ट. एज यू कैन, इट इज सिमेट्रिक, राइट, इट इज सिमेट्रिक. Are you getting? It is symmetric and also it is a positive definite and also linearity property satisfy. As you can see, it is linear. So that is why it is what, it form a inner product space. Acha, let's see another option. So option number C. So see what is option number C and try to read it and then we will try to solve. Okay, so option C क्या दिया हुआ है, उन्होंने डिफाइन कर दिया है ये इनर प्रोडक्ट विच इज गिवन लाइक दैट. एज यू कैन ऑब्जर्व इजिली, इट इज ए लीनियर and also it is symmetric. Now the remaining thing is what, we have to check whether it is positive definite or not. If it is a positive definite, then we will find and we will say it defined inner product space. Okay, so let us write its matrix representation. So what will be its matrix representation, 1 1 1 1, which is 2 by 2 matrix as it is defined on R2. So here what we get, here one eigenvalue, as you can see each row sum is what 2. So one of them eigenvalue will be what, 2. So lambda एक eigenvalue मिल जाएगी. अच्छा, हमें पता है ट्रेस का सम क्या होता है. also you can see it is what, इसका रैंक क्या है, 1 है. so एक तो 0 eigenvalue मिल जाएगी. ठीक है, तो वहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो. तो इसकी eigenvalue क्या आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी. अच्छा, it is a positive definite, not a it is a positive semi definite, not positive definite. Okay, so it is also incorrect, which implies M is positive, okay, definite, okay, okay. So what is our option D? Let's read and then try to think about. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, उन्होंने ऐसे डिफाइन कर रखा है. इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा देखना जल्दी से. 1 माइनस 1/2 एंड 1/2 and 1. As you can see, it is a symmetric and also linearity property satisfy. So remain thing is what, we have to check whether it is a positive definite or not. So let us see what is its eigenvalue. So as you can see here, one eigenvalue is what, 1/2, as it's a row sum, either row sum or column sum. Each row sum or each column sum is 1/2. So it implies that one eigenvalue will be what, 1/2. And another eigenvalue, how we will find another eigenvalue, as you can see, lambda 1 plus lambda 2 is equal to 2, and so one is 1 by lambda 1 is 1/2. So another lambda 2 will be what, lambda 2 क्या हो जाएगा, जरा देखना, 2 minus 1/2 which is equal to 3/2, right. सो दोनों ही पॉजिटिव आइगन वैल्यू आ गई. सो ये इम्प्लाइज कर देगा ये पॉजिटिव डेफिनेट. ठीक है, क्लियरली एम इज ए पॉजिटिव डेफिनेट. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स आ गई. सो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है,
Okay, so let us read another question. So question number 71, and this, let us read and then try to think about what is given here and try to understand it. So let us read. Why not pause video and think about this question, and let me know which of the following option correct. So let us try to read. Okay. So what is given here? Okay. So क्या दिया हुआ है? उन्होंने दे रखा है कि लेट ए बी एम बाई एन मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स सच दैट द फर्स्ट आर कॉलम आर रो ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड द फर्स्ट इज कॉलम ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेयर आर इज लेस देन एम एंड एस इज लेस देन एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. तो हमें बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, सो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है. The rank of A is at least maximum R, yes, and the sum matrix formed by the first row and the first S columns of A has a rank minimum R, yes. And if R is less than S, then there exists a row among rows R1 plus R2 divided by M, then which together with the first row form a linearly independent set. And option D क्या बोल रहा है? If R is less than R, then there exists a column among the columns S plus 1 comma divided as N, which together with the first S column form the linearly independent set. How it is lengthy now? Okay, so let us think about. क्या करते हैं हम M by N की मैट्रिक्स ले लेते हैं. एक कैसी है हमारी? एक कैसी है? लेट कैसे डिफाइंड है इन्होंने? M by N की मैट्रिक्स है, राइट. अच्छा, फिर बोल रहे हैं कि क्या है? R रो एल आई है, ऐसे ऐसे करके R. ठीक है, R रोज कैसी है? एल आई है. ठीक है, एंड देन क्या बोल रहे हैं कि एस कॉलम्स. ठीक है, कैसी है? एल आई है. अच्छा, जरा देखना, क्योंकि उन्होंने बोला कि आर इज लेस देन एम एंड एस इज लेस देन एम. ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक पाइवोट है, यहाँ एक पाइवोट है, यहाँ एक पाइवोट है ना. रो में सिर्फ 3 पाइवोट है, कॉलम में कितने पाइवोट हैं? 5 है. तो यहाँ पे एज यू कैन सी इसके टोटल पाइवोट कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे. अच्छा, तो इस चीज़ से हमें क्या ऑब्जर्व किया? हमने इस चीज़ से ये ऑब्जर्व किया तो कि इसकी जो रैंक आएगी, जो मैट्रिक्स की हमारी मैट्रिक्स की रैंक होगी, वो क्या होगी? रैंक ऑफ ए जो होगी वो क्या होगी? बताना जरा, क्या होगी? कम से कम क्या हो जाएगी? यस, मैक्स ऑफ आर कमा यस. ओके, अच्छा, और क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? द सम मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट आर रोज एंड फर्स्ट एस कॉलम्स हैज रैंक मिनिमम ऑफ आर कमा यस. अच्छा, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट आर रोज एंड फर्स्ट एस कॉलम्स एल आई हैं. ठीक है, द सम मैट्रिक्स फॉर्म. अच्छा, एक चीज तो हमें पता है कि रैंक एक रैंक की डिफिनीशन क्या होती है. हम क्या करते हैं? ओके, इन बाई एन केस हम क्या करते हैं? उस सब मैट्रिक्स को लेते हैं, मैट्रिक्स ए की, जो कि कैसी होती है? नॉन सिंगुलर होती है, वही रैंक आ जाता है. अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? कह रहा है सब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट आर रोज एंड द फर्स्ट एस कॉलम्स ऑफ ए हैज रैंक मिनिमम ऑफ आर कमा एस. मिनिमम. ओके, how you will prove it, how you will solve it?
अगर 3x2 की मैट्रिक्स ले लिया जाए, ठीक है, एंड यहाँ पे इस क्या ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, R1 ले लिया जाए, नहीं, सो व्हाट विल डू, क्या बोल रहा है, द सम मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट आर रोज एंड द फर्स्ट इज कॉलम ऑफ ए हैज रैंक मिनिमम. Okay, so I am not getting this option, so we will discuss it again if I will get it. So let us see another options. What is another option? If R is less than S, then there exists a row among, अच्छा क्या बोल रहा है, यदि हम कह रहे हैं कि R कैसा है, लेस देन S है, ओके, R कैसा है, लेस देन S है, ठीक है जी, R लेस देन S है. अच्छा, तो यहाँ पे एक रो मिल जाएगा ना जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, नहीं ये कैसे बोल सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट ए रो एमंग R+1 एड्रेस विच टुगेदर विद द फर्स्ट R रो फॉर्म, यस, एज यू नो R एंड S क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एल वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर R लेस भी है तो कैसा होगा, क्योंकि एस कैसे एल है, ठीक है, तो आगे कोई ना कोई आपको R1 R2 R3 में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो कि कैसा होगा, एल होगा. आर यू गेटिंग माई दिस थिंग? इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट थिंक अबाउट. वो क्या बोल रहे हैं कि यस कम है, ठीक है, मान लो यस 3 ही है, सॉरी R 3 ही है, बट यस क्या है 6 है, तो मीन्स कि 6 हमें एल वेक्टर मिल गए. अच्छा, एज यू कैन सी इट इज R इज लेस देन M. अगर ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, इसकी भी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है. इफ यू चेंज इट योर गिवन बिलो थिंग्स आल्सो नॉट विल बी मे बी नॉट करेक्ट. ओके, जस्ट थिंक अबाउट. सो क्या बोल रहे हैं कि अगर कैसा है, इस गिरदन है, अच्छा इस गिरदन है, तो यहाँ R में मान लो R आपका 3 है, इस कैसा 6 है, तो पाइवट तो 6 मिलेंगे ना. अच्छा, पाइवट 6 मिलेंगे, तो नीचे जो कुछ रोज हैं, ठीक है, 3 रोज हैं जो कि हमें नहीं पता कैसा है क्या है, बट वो 3 रोज कैसी होंगी जरा बताना. कम से कम इनमें से 3 तो एल होगी ना. वही चीज ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ R इज लेस देन S देन देयर एग्जिस्ट ए रो एमंग, वो केवल एक के एग्जिस्टेंस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कम से कम एक तो होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है. आर यू गेटिंग इट? यस. सो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. सो वी आर नॉट गेटिंग दिस थिंग, बट आई थिंक इट इज इनकरेक्ट, बट आई डोंट नो हाउ इट इज नॉट इनकरेक्ट. मान लो लार्जेस्ट आप ले लेते हो, लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स ले लेते हो, तो वहाँ पे जैसे हमने ऊपर देखा कि इसका मैक्स आता है ना, सो मिनिमम कैसे बोल सकते हैं, तो वैसे सोचे तो ये इनकरेक्ट होगा. ओके, कोई नहीं, लेट अस थिंक अबाउट ऑप्शन डी. क्या बोल रहे हैं, इफ यस इज लेस देन R देन देयर एग्जिस्ट ए कॉलम एमंग दीज थिंग. अच्छा, क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि अगर R रोज एल हो जाए, तो यहाँ पे R कॉलम भी अगर ये चीज़ छोटा है तो कम से कम R कॉलम भी एल होंगे. वो बोल क्या रहे हैं, देयर एग्जिस्ट ए कॉलम एमंग S+1 विच इज टुगेदर इस कॉलम, नहीं, इट इज इनकरेक्ट. ओके, just read again and then try to think about, then you will get, definitely you will get it. Okay, so let us solve another question. So what is our next question here? So our next question is what, question number 74, and just let us read and try to think about what is our question number 17. So what is given here, let A be n by n matrix. So we say that A is diagonalizable if there exists a non-singular matrix P such that P inverse is a diagonal matrix, and which of the following condition implies that A is diagonalizable. तो उन्हें बताना कौन सी कंडीशन इम्प्लाई करेगा कि ये diagonalizable है. अच्छा, there exists an integer k such that A की पावर k equal to 1. अच्छा, कैसी मैट्रिक्स है, it is here our entries came from C. Okay, so we have to see whether it is diagonalizable over C or not. So we have to check it. So option ए के दिया हुआ है, there exists integer k such that a k is equal to l. अच्छा, a k equal to
Okay. Then other option क्या, there exist integer case such that AK is nilpotent matrix है. There exist integer cases that AK is nilpotent matrix. अच्छा, उन्होंने बोल दिया कि ये डायगोनलाइजेबल है. ये कैसा है? डायगोनलाइजेबल है. अच्छा सॉरी, कौन सा इंप्लाइज करेगा कि ये डायगोनलाइजेबल? लेट अस रीड अगेन क्वेश्चन. ओके, सो लेट A be n by n matrix. We say that A is a diagonalizable if there exists. अच्छा, यहाँ तो पहले तो वो डिफाइन कर रहे हैं कि होता क्या डायगोनलाइजेबिलिटी, यहाँ तक उन्होंने डिफाइन किया. ठीक है, यहाँ तक. अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज ए इज डायगोनलाइजेबल. इनमें से कौन सा जो इम्प्लाइज करेगा डेफिनेटली कि एक ऐसा डायगोनलाइजेबल आ जाए. फर्स्ट क्या बोला उन्होंने, देयर एग्जिस्ट के सच दैट ए की पावर के इक्वल टू एल. अच्छा ओके, ठीक है. देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए के इक्वल टू एल. यहाँ पे एल नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. एन बाई एन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. एंड बी क्या, देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए के इज एन निलपोटेंट मैट्रिक्स. अच्छा, ये चीज़ तो पहले ही गलत हो गई. कैसे गलत हो गई? अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ये डायगोनलाइजेबल तभी होगा जब ये जीरो मैट्रिक्स हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए डायगोनलाइजेबल. ठीक है, बट सी क्या क्या चीज़, अगर ये निलपोटेंट हो गई तो am नॉट इक्वल, am ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू gm ऑफ am. दैट इज वाई इट इज नॉट, दैट इज वाई इट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, why it is not correct? Because if it is a nilpotent matrix, then it is diagonalizable if and only if it is a zero matrix. If you suppose कर लो कि नहीं ये है diagonalizable, then we have to prove am of zero is equal to gm of zero. ठीक है, we have to prove this thing. अच्छा, gm of zero is nothing but rank of what? Rank of your given matrix, right? ओके, gm क्या हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर n माइनस रैंक ऑफ योर गिवन थिंग. ठीक है, आई मीन गिवन मैट्रिक्स. सो इन दैट वे यू कैन प्रूव इट. ओके, if you are not getting then you can let me know in comment box, then I will explain in another question, because like that question they ask in many times, so we will prove. Okay, in previous also they ask like that question, so we will prove. अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, a square is diagonalizable. A square is diagonalizable. Okay, think about what about if you take a equal to, अगर 0 1 1 0 ले लो और ये क्या ले लो, रियल मैट्रिक्स ले लो. ठीक है, हमने रियल मैट्रिक्स ले लिया. ओके, but see it is not diagonalizable over R, right? So in general we cannot say it is यहाँ पे a स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, a स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखना जरा. a स्क्वायर क्या होगा, 1001 विच इज अ डायगोनलाइजेबल. ठीक है, बस सी क्या पे यहाँ पे देख लो आप, क्या देख लो यहाँ पे इसके जो आइगन वैल्यू आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आई हो जाएगी. ठीक है, विच इज नॉट इन आर, सो इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर, विच इम्प्लाइज ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल over R. So in general it is not true. So it is not true in general. Are you getting my point? Why it is incorrect? If you take A this, and as you can see A is not diagonalizable over R, that is why it is not true. But say here A square, which is identity matrix, which is diagonalizable in over R or Q, whatever you will take. As we know, identity matrix always diagonalizable. Okay. अच्छा एक नोट होता है, क्या होता है, if A has n linearly independent eigen value, then it is diagonalizable. ठीक है, ये एक तरह से थ्योरम होती है, so it will be correct. ओके, सो ये थ्योरम होती है कि A इज डायगोनलाइजेबल. ठीक है, इफ A हैज n linearly independent eigen vector. Another word, if characteristic polynomial, if minimal polynomial of A has distinct linear factor. Okay, so let us do another question. So here, wait, we don't know about option A, right?
सो वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल्सो. सो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी था. तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया है कि ए के इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है. तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए ऑफ एक्स क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है. जरा देखना है इसको. एक तो एक्स के -1 पॉसिबल है, अनदर क्या पॉसिबल है, एक्स -1 पॉसिबल है, अनदर क्या पॉसिबल है, जरा देखना. यस, क्या के -1, ठीक है, प्लस एक्स के -2 प्लस एड्रेस करके +1, ठीक है. ओके, ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है. अच्छा, ये चीज़ को जरा नज़र डालना, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, क्या आएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाइक दैट, ठीक है, ओमेगा के -1. एंड ये कैसा है, इमेजिनरी है. तो इट इज़ नॉट विच इम्प्लाइज एज आइगन वैल्यू of A are not real, so it is not diagonalizable over R. But C, it is diagonalizable over C. It is not diagonalizable over R, but diagonalizable over C. Okay, good. So ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सॉरी, ऑप्शन ए क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, सो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 75. सो इट इज व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 75. सो लेट अस रीड एंड देन ट्राई टू थिंक एंड we will think and see whether we are getting or not. So what is question 75? So consider a system 2x plus k y is equal to 2 minus k, and second equation क्या दिया हुआ है, kx plus 2y is equal to k, एंड थर्ड क्या दिया हुआ है इक्वेशन, के वाई प्लस के जेड इक्वल टू के माइनस सी. ओके ओके, सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू राइट इट इन a matrix form, then we will see. So here what we will get, 2 k a जो आएगी a b, ठीक है. ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k 2 k, सॉरी यहाँ देखना, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, k है, 0 है, ठीक है. y का कोफिशिएंट क्या है, k है, 2 है, k है, k 2 k, राइट. z का कोफिशिएंट देखना क्या है, 0 0 z है, ठीक है. 2 माइनस k एंड k -1. अब यहाँ पे क्या करो, इसको रिड्यूस करो, ठीक है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या किया जाए, ओके, ये यहाँ पे क्या है, के है, सॉरी फॉर दैट. हाँ, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है, इट विल बी इजी ना. सो 2 इंटू इसका जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अच्छा, ये सिंगुलर कब होगा, जब अगर ये सिंगुलर हो जाए तो क्या होगा, वेट ए मिनट, आई हैव टू टेल यू समथिंग. कंसिस्टेंस कब होता है और नॉन कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंस कब होता है, कंसिस्टेंस कब होता है, जरा देखना. कंसिस्टेंस कब होता है, इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, राइट. अच्छा, इनकंसिस्टेंस कब होता है, आइदर लेस देन इक्वल टू, ठीक है. इनकंसिस्टेंट कब होता है, रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए आ जाए, ठीक है, तब ये इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है. ओके, सो वी हैव टू चेक व्हेन इट विल बी इन कंसिस्टेंस, यदि डिटर्मिनेंट. अच्छा, देखना क्या है कि किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए, ये क्या बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ के इज द सिस्टम लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट. अच्छा, क्या पुट कर दिया जाए कि इसका जो था वो इनकंसिस्टेंट आ जाए, कंसिस्टेंस आ जाए, सॉरी. तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो वैल्यू के आ जाएगी उसको छोड़ के
बाकी सबके लिए कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा बाकी सबके लिए। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 2 इंटू, जरा देखना इसे, 2k माइनस के इंटू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 0, ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 0 इंटू समथिंग वाट एवर 0 ही जाएगा। अच्छा, ये यहाँ से इसको अगर आप 0 ले रहे हो तो ये चीज़ इम्प्लाइज करेगी, क्या इम्प्लाइज करेगी, 4k माइनस के क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, k इंटू 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इम्प्लाइज करेगा k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू प्लस माइनस 2। So it is consistent for what? Okay. If you will not put value k की वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 नहीं पुट करते हो, 0 नहीं पुट करते हो, तो ये कैसी हो जाएगी, बताना क्या आ जाएगी, यस कंसिस्टेंस आ जाएगी। तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओके, इट इज अलजेब्रा क्वेश्चन आई थिंक, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा क्वेश्चन। सो लेट अस सी, ओके, so what is our next question? It is algebra question and let us try to think about whether we are getting or not. So let us read our question. Why not pause video and think about this question? If you will get, let me know how you solve it. So let's read it. Okay, so what is given here, let G be a group of order 24 ऑर्डर का ग्रुप है। अच्छा, 24 ऑर्डर के ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, यस 4 क्या होता है, इसका ऑर्डर कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, अच्छा 12 बच्चों को क्या जाएगा, चाचा को 24। अच्छा हाँ, यस 4 एक तो पॉसिबल है, जेड 24 पॉसिबल है, अच्छा D12 भी पॉसिबल है ना, यस। तो दीज आर कम्स इन आवर माइंड ना फर्स्ट। अच्छा चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें बताना है, कौन सा जरूरी ही सही होगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि इनमें से कौन सा सही है। अच्छा जी, जरा ऑप्शन पर नजर डालते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जी हैज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, जी इज नॉट ए सिंपल ग्रुप, देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G2, यस 8, एंड जी हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। अच्छा, और ये कहाँ से आया, जी हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। अच्छा, सो फर्स्ट वी विल सी वेदर इट हैव ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 और नॉट, है ना। अच्छा, इसके नॉर्मल सब ग्रुप निकालने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, सीलोस थ्योरम्स के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके NP की वैल्यू निकालेंगे, देन वी विल थिंक अबाउट मोर। हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुप्स देखेंगे, देन आगे देखेंगे, पहले देखेंगे कि कितने सब ग्रुप पॉसिबल हैं गिवन SSG के। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ जी क्या दिया हुआ है, 24 है। अच्छा, 24 को और क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो ना। अच्छा देखना, 1 प्लस 2k किस किस वैल्यू के लिए, k की किस किस वैल्यू के लिए ये डिवाइड करेगा, है ना। एंड इट इज़ नथिंग, दिस थिंग इज नथिंग बट योर NP। if you take k equal to 0 1 2 3, then what you will get, if you take k is equal to 0, then you will get NP is equal to 1, and it is possibility of subgroups है। if it and it is divide 3। अच्छा देखना, अगर k की वैल्यू 1 ले लो तो क्या मिलेगा, NP की वैल्यू 3 मिलेगा। अच्छा, इसके आगे किसी भी वैल्यू के 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, 1 ले लोगे तो उसके लिए डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी आई, आइदर इट एंड अदर इट। अच्छा, ज़रा देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल है। तो सपोज इसके पास 3 सब ग्रुप है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 का, 3 ऑर्डर का 3 सब ग्रुप है। अच्छा, 3 कैसा है, प्राइम नंबर है। अच्छा, 3 कैसा है, प्राइम नंबर है। तो हमें पता है एक चीज़, क्या पता है, क्या पता है बताना, नंबर ऑफ
subgroups of order 3 equal to number of elements of order 3 upon phi 3, राइट। तो अगर मान लो अगर इसके पास 3 सब ग्रुप हैं, अच्छा ये चीज़ क्या इम्प्लाइज करेगा, ये चीज़ इम्प्लाइज करेगा क्या कि 3, मान लो सपोज कर लो अगर इसके पास 3 सब ग्रुप है ना, सपोज, देन देखेंगे क्या कंट्राडिक्शन आ रहा है ना। सपोज यहाँ पे क्या कर लो, सपोज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 है ना, देन देखेंगे क्या मिलता है ना। ओ सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या ले लो, ऑफ ऑर्डर 2, ओके सॉरी फॉर दैट, 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 माना गया तो 3 इंटू 5 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये चीज़ क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा यस 4 में देखना क्या 3 ही एलिमेंट है यहाँ पर ऑर्डर 2 के, देखते हैं, ठीक है, कितना सही है। अच्छा यस 4 के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम यस 4 है ना, तो 4 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिससे कि हम एलसीएम में हमें 2 मिल जाए। एक तो 2 + 2 करेंगे तब भी एलसीएम आएगा, इसका अगर एलसीएम लोगे 2, 2 का एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, या फिर इसको लिख लो 1 + 1, यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा ऑफ ऑर्डर 2 होगा, वो क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन, जरा देखना 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। अच्छा इसको जरा सॉल्व करो कितना मिलता है देखते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर क्या 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख लो, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करोगे कितना मिल जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो अगेन ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा देखना यहाँ से क्या आ जाएगा, यस क्या आ जाएगा, 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो यस 4 के पास 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट हैं, 9 है, बट ये क्या बोल रहा है, अगर आप ये सपोज करते हो कि इसके पास 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप हैं, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को, राइट। अगर 4 ऑर्डर को लेके चलते हो तो यहाँ पे नंबर एलिमेंट क्या मिलते हैं, 3 मिलते हैं, बट हमें पता है अगर यस 3 ले लिया जाए तो वहाँ पे इस केस में हमें यस 3 के पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 ऑर्डर के 9 आ रहे हैं। सो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट, फॉर यस 4। सो दैट इज वाई दिस 3 सब ग्रुप नेट पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा तो पॉसिबल क्या है, ये चीज़ इम्प्लाई करेगा, क्या इम्प्लाइज करेगा, एनपी की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, ना कि 3, ठीक है। अच्छा अगर एनपी की वैल्यू 1 है, अब हमें अनदर थ्योरम पता है, अगर कोई सब ग्रुप यूनिक हो जाता है ग्रुप में, ठीक है, यूनिक हो जाता है आप गिवन पर्टिकुलर ऑर्डर, तो वो कैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अच्छा तो ये इम्प्लाइज करेगा क्या, इट इम्प्लाइज जी हैज़ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 which implies G has normal subgroup of order what, yes, order 2। अच्छा तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है,
जी हैज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, इसको चेक करते हैं अभी। जी इज नॉट, अच्छा ये तो कंफर्म हो गया कि ये सिंपल तो नहीं है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ तो क्लियर हो गई, हमें पता चल गया कि ये सिंपल तो भाई नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? देयर एग्जिस्ट इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to S8। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? इंजेक्टिव है। सपोज करो ऑप्शन सी के लिए क्या करो, 5 हमने डिफाइन कर दिया कहाँ से? G से G में। नहीं, इधर क्या है? यस 8 है, यस 8 ही है ना? यस 8 है। अच्छा चलो ठीक है, I think it is yes 4 not yes 8. You can check it. Okay. अच्छा, if phi is इंजेक्टिव है ना, तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा? जो कर्नल ऑफ फाई आ जाएगा, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है, हमेशा ये कर्नल ऑफ फाई क्या आ जाएगा? सिंगलटन 0 आ जाएगा। अच्छा, सिंगलटन 0 आ जाएगा। तो बाई फंडामेंटल थ्योरम, बाई फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म, हमें क्या पता है? जरा बताना क्या पता है? जी क्वेश्चन बाई कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक हो जाता है इमेज ऑफ फाई के, सॉरी इमेज ऑफ जी, ठीक है। अच्छा, अगर आपका ये जी क्या हुआ? जेड क्या हुआ? जरा देखना, जेड 24 आया, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंगलटन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? जेड 24 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा 5G के, है ना? मान लो अगर ये 8 ही हुआ, बट इसका इमेज क्या आ जाएगा? यस 4 आ जाएगा, है ना? ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तो साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक है ना, तो ये इंजेक्टिव पॉसिबल नहीं है। एजुकेटिंग, ये इंजेक्टिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंट्रडिक्शन कर रहा है इसको। ओके, सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डी ऑप्शन देखना क्या बोल रहा है? जी हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। अब इसके लिए क्या किया जाएगा? इंडेक्स करने के लिए मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ पे एक सब ग्रुप मिल जाएगा, कितने ऑर्डर का? 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाएगा, है ना? 6 से डिवाइड करोगे तभी ये चीज़ मिलेगा, है ना? तो क्या इसके पास कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 आ जाए? हाउ टू चेक इट, हाउ टू फाइंड इट, है ना? थिंक अबाउट क्या किया जाए इसमें? व्हाट विल डू हियर? अच्छा, हमें क्या पता है? क्या पता है जो नॉर्मलाइजर ऑफ एच जो होता है, कैन यू यूज इट? ओके, ये जो होता है ये इक्वल होता है व्हाट? बट फर्स्ट वी हैव टू चेक ना। ऑर्डर ऑफ जी अपॉन क्लास ऑफ एच ना, कंजुगेट क्लास ऑफ एच, ये चीज़ ट्रू होती है। तो अगर ये 6 आ जाए, और सॉरी 6 आ जाए, है ना? सॉरी, I am not getting it, so you can think again about it. So we will okay, so think about. Right now I am not getting it. I think we will use this thing. Okay, just think about whether you are getting or not. If you are getting, let me know in comment box. So let us do another question.
So our next question, what? So 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया हुआ है जरा देखना. फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n एंड लेट ओमेगा, okay, for a positive integer n, let omega n denotes the number of prime factor of n and then count it with the multiplicity. For instance, omega of 3 is equal to 1 and omega 6 is equal to omega 9 is equal to 2. Let p is greater than 3 be a prime number and let n is equal to p into p plus 2 and p plus 4. Then which of the following are true? then कौन सा ट्रू है. अच्छा, p कैसे डिफाइन कर दिया इन्होंने. पी कैसा है, ग्रेटर देन 3 से है. ठीक है, एन कैसे डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन कर दिया. ओमेगा है क्या, अच्छा ओमेगा क्या है, प्राइम फैक्टर है किसी गिवन नंबर का एंड मल्टीप्लिसिटी के साथ हम इसको काउंट कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा इसको कैसे किया जाए, हाउ टू सॉल्व इट. अच्छा देखना, अगर p 3 से बड़ा है, 5 7 11 ऐसे करके ना, 5 7 11 13 ऐसे करके है ना. सो इफ़ यू टेक 5, लेट अस सी व्हाट वी विल गेट. इफ़ यू टेक लेट अस राइट आल्सो, अदरवाइज इट विल बी आउट ऑफ माइंड. सो हियर व्हाट यू विल राइट. ठीक है, क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है उन्होंने, p इक्वल टू p प्लस 2 एंड p प्लस 4 एंड इफ़ यू टेक व्हाट, p की वैल्यू कैसी, ग्रेटर देन 3 है. अच्छा जी, p की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो यहाँ पे, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं. एंड देन बाय दिस वैल्यू वी विल ऑब्जर्व व्हाट वी विल गेट. ठीक है, सो यहाँ पे जब आप क्या लोगे, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब पी की वैल्यू 5 लोगे तो क्या आ जाएगा, ओके, जब पी की पावर 5 लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 7 इंटू 9. ठीक है, एंड ये क्या आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा, देखना, 7 इंटू 9 इंटू क्या आ जाएगा, यस, इन 11 क्या आ जाएगा, चला देखना, 11 इंटू 13 इंटू 15, राइट. एंड इन की पावर जब क्या लोगे आप, क्या लोगे, 17 लोगे ना, तो क्या आ जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू क्या आ जाएगा, 21 सॉरी. एंड जब क्या लोगे आप 19 लोगे तो क्या आ जाएगा, 19 इंटू 21 इंटू 27, राइट. ये क्या आ जाएगा, 23 लोगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखना, 22 लोगे तो क्या मिल जाएगा, 23 इंटू 25, यस 25. एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 4 ऐड करोगे क्या मिलेगा, 23 मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा. अच्छा, एंड सो ऑन. अगर एक p होगा तो अदर जो होगा ना, जब जैसे ही आप उसमें 2 जोड़ोगे तो उसका जो फैक्टर होगा ना, उसका फैक्टर जो होगा वो p से छोटा होगा. ठीक है, जो अदर नेक्स्ट आएगा. तो बेसिकली यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि सबसे छोटा p ही हो, इससे छोटा भी हमें मिल जाएगा. ठीक है, इसका फैक्टर ज़रूरी नहीं कि इसके अगर 23 ले रहे हो तो n के फैक्टर में p ही छोटा हो, इससे अनदर वैल्यू भी छोटी हो सकती है. अच्छा, कहना क्या चाहते हैं हम, चलो ऑप्शन देख लेते हैं. क्या बोल रहा है, एन ऑफ ओमेगा ऑफ एन इज ग्रेटर टू 3 काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी. जरा देखना इसे कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसके 4 आ रहे हैं. ठीक है, बड़ा है, सही है. ऐसे ही देखो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. इसका देखो क्या आ जाएगा, इसका भी 4 आ रहा है. इसका भी देखना कितना है, कम से कम 3 या उससे बड़ा आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इन जनरल ऑल्सो. अच्छा देखना, you can prove it by using principle of mathematical induction also. b क्या बोल रहा है, there exists a prime p greater than 3 such that इसकी वैल्यू 3 आ जाए. अच्छा,
क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक प्राइम p एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट ओमेगा ऑफ n इक्वल टू 3. इज इट पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल है? देखो एक तो प्राइम हो गया, और जैसे ही नेक्स्ट करोगे वहाँ से 2 आ जाएगा, और जैसे ही नेक्स्ट करोगे वहाँ से भी कम से कम 1 आएगा, तो कम से कम 4 तो पॉसिबल है. तो ये चीज़ तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप कोई प्राइम ले रहे हो, एक तो ये हो गया, एक आ गया प्राइम फैक्टर. जैसे ही p+2 करोगे यहाँ से कम 2 प्राइम फैक्टर मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि p+4. अब देखो यहाँ से कम एक तो प्राइम फैक्टर मिलेगा, एक से ज़्यादा मिल सकता है. तो कितने हो गए? 4 से ज़्यादा. तो ये चीज़ इनकरेक्ट हो जाएगा. अच्छा, क्या बोल रहा है, p कैन नेवर बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवीजर ऑफ n. यस, इट इज़ ट्रू. As you can see, if you take 5, then it is written, then n written as a 5 cross 7 cross 9, and you can see here 3 is the smallest prime factor, right? And in other cases also here 3. In all the cases 3 is the smallest prime factor, so we cannot say it ना. अच्छा, क्या बोल रहा है, p is the smallest. तो ये गलत हो जाएगा. क्या बोल रहा है, p is the smallest prime divisor of n. ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा. I hope you are getting it. Okay, so let us try to do another question. And what is next question? Next question क्या दिया हुआ है, let f a0 plus a1x plus z plus an xn be the polynomial with the ai in z for 0 is less than equal to I is less than equal to n. Let p be the prime such that p divides ai for all 1 is less than equal to I less than, sorry, क्या है, let f is equal to a0 plus a1x plus an xn be the polynomial with the ai in z and for 0 is less than equal to 0 is less than equal to I less than equal to n. let p is a prime. अच्छा, p प्राइम है, then p क्या कर रहा है, p डिवाइड कर रहा है ai को for all 1 is less than equal to I less than equal to n. यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दो, क्या है, 1 is less than equal to I है, मतलब इसको छोड़ के इन सभी को डिवाइड कर रहा है. ठीक है. एंड पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड, एंड पी स्क्वायर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है. अच्छा जी, बट यहाँ पे इसको छोड़ रहा है ना, ये नॉट को. हम ये नॉट के बारे में तो बता ही नहीं पा रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ हमें पता है, आइंस्टीन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है. अगर आप कोई पॉलिनोमियल ले लेते हो इस तरह से, कैसा पॉलिनोमियल ले लेते हो, सपोज कर लो f इक्वल टू x की पावर n है ना, an प्लस दैट x an प्लस a0. कोई पॉलिनोमियल ले लेते हो सच दैट जो ai कहाँ है, z में है ना. ai कहाँ है आपके, z में है. फॉर ऑल i इज लेस देन इक्वल टू, फॉर जहाँ पे आपका i क्या होता है, i क्या होता है, 0 से n के बीच होता है. देन हमें अगर यहाँ पे एक प्राइम मिल जाए, एक प्राइम नंबर मिल जाए कुछ इस प्रकार से, जो कि क्या करे, a0 को डिवाइड करे, an को डिवाइड करे, दैट करके an को डिवाइड करे, बट जो p स्क्वायर है वो a0 को ना डिवाइड करें, है ना. अगर a0 को ना डिवाइड करें तब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये कैसा है, ये इरेड्यूसिबल है ओवर z और ओवर q. बट इन आवर केस वी डोंट नो अबाउट a0 whether it divide or not, so it may possible it is irreducible or it may possible it is reducible. So here both the possibilities comes due to that thing, because we don't know whether our prime divide a0 or not, है ना. So due to this we cannot say it is always irreducible and we cannot say it is always irreducible. But we can say it is sometime it is irreducible and sometime it is reducible. It depend on a0. If it divide, if our p is here exists a p which divide a0, then we will say, ठीक है, और then we will say it is irreducible. But in general we cannot say. So और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. अच्छा, ऑप्शन टी क्या बोल रहा है, f have degree 1, f have degree. अच्छा, अगर f की वैल्यू डिग्री 1 हो गई तो ये तो ऊपर गिवन किसी भी चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना. सो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो ऑल 3 ऑप्शन आर इनकरेक्ट. सो लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. सो आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चन. सो वी विल थिंक अबाउट option B again. You can also think if you are getting, let me know in comment box. Till then, bye bye, see you soon again. Thank you.